So I'll begin with next question. Fluid flow. बहुत easy questions है इसके, most of them are theory. तो पहला question, which of the following diagrams does not represent a streamline flow? Option D. क्योंकि streamline flow में as you remember, the flow lines move over each other and do not intersect each other. तो intersection नहीं होना चाहिए, but in option D you can see different streamlines are intersecting each other. तो वो streamline नहीं है, that is turbulent flow. Next question. Along a streamline, the velocity of a particle remains constant. पूरे streamline पे velocity constant है, ऐसा option A बोला है. The velocity of all the fluid particles crossing a given position is constant. The velocity of all the particles at a given instant is constant. The speed of a fluid particle remains constant. Option B. To the streamline flow में at a given point velocity is always constant. So option number B. Next question. A liquid is allowed to flow into a tube of truncated cone shape. So there is a liquid which is allowed to flow into a tube of truncated cone shape. Identify the correct statement from the following. The speed is high at the wider end and high at the narrow end. The speed is high at the wider end and high at the narrow end. What is the equation of continuity? A1 V1 equal to A2 V2 मतलब A into V is constant, मतलब area and velocity are inversely proportional to each other. तो जहाँ पे end wider होगा, मतलब area of cross section ज़्यादा होगा, वहाँ पे speed होना चाहिए कम. तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या? नहीं. The speed is low at the wider end. जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना स्पीड कम. तो स्पीड इज लो एट द वाइडर एंड, यस. हाई एट द नैरो एंड, यस. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. द स्पीड इज सेम एट बोथ द एंड्स, नो. द लिक्विड फ्लोज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द ट्यूब, नो. तो ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Water is flowing in a pipe of diameter 4 centimeter with velocity of 3 meter per second. The water then enters into a tube of diameter 2 centimeter. The velocity of the water in the other pipe is. Simple question है. हमारे पास एक पाइप है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर का है, उसमें स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड. The water then enters into a tube of diameter 2. The velocity of the water in the pipe is. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2. V2 फाइंड करना है आपको, तो V2 इक्वल टू A1 बाई A2 टाइम्स ऑफ V1. A1 इज पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर होता है डायमीटर बाई 2, तो पाई D1 स्क्वायर बाई 4 अपॉन पाई D2 स्क्वायर बाई 4 इंटू V1. पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट V2 इक्वल टू D1 बाई D2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ V1. और D1 D2 दोनों सेंटीमीटर में रहने तो डजंट मैटर रियली. तो D1 की वैल्यू कितनी है 4, D2 कितना है 2 और V1 कितना था 3. तो 1 and 2 का 2 square is 4, 4 into 3 is 12. तो 12 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर सी. राइट. Comparatively, they are very simple questions.
नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal fluid flows through a pipe of circular cross section made of two sections with diameter 2.5 and 3.75 centimeter. The ratio of velocities of the two pipe is, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला सीधा यही यूज कर लेना। तो फॉर सच केसेस यू कैन यूज v1 d1 स्क्वायर इक्वल टू v2 d2 स्क्वायर, क्योंकि ये v इंटू ए अल्टीमेटली आपको दे देगा v1 d1 स्क्वायर इक्वल टू v2 d2 स्क्वायर। और बाय द वे ये क्वेश्चन इट हैज़ अपीयर्ड इन सीईटी एग्जाम। तो क्या पूछा है आपको, v2 पूछा है, रेशियो पूछा है, ओके v1 बाई v2 सिंपल आ गया, ये d2 बाई d1 का स्क्वायर, व्हाट इज d2 3.75 अपॉन 2.5 का स्क्वायर, दिस इज 2 and 3 का 1.25 into 2 and 3, तो 9/4 is the answer, 9/4 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ओके तो ये क्वेश्चन इट इज अ गुड क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट दो बट अ गुड क्वेश्चन। इन दिस फिगर, तो देयर इज अ फिगर दैट इज गिवन टू यू, एन आइडियल फ्लूइड मतलब नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो थ्रू द ट्यूब विच इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन हर जगह पे सेम है। The liquid has speed VA and VB and pressure PA and PB at points A and B respectively. So which one is correct? Actually multiple correct type का क्वेश्चन है ये, तो चारों में से क्या करेक्ट है ऐसा पूछा है। नो, ए करेक्ट आएगा। क्यों ए करेक्ट आएगा? क्योंकि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह पे सेम है तो स्पीड सेम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस एरिया इज सेम, सिंस क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, ए कांस्टेंट होने का मतलब होता है वी कांस्टेंट होना, और वी कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि वी ए और वी बी दे आर सेम, तो वी ए इक्वल टू वी बी, ऑप्शन ए तो आएगा ही आएगा। लेकिन इसमें और एक करेक्ट आएगा, देखते हैं सी के डी, प्रेशर दे आर नॉट सेम। क्यों नहीं सेम? प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू, ये जो अगर हाइट है इसको मैं h मान लेता हूँ, तो h रो g, इसके ऊपर लिक्विड है, उसके ऊपर a पॉइंट है, प्लस प्रेशर एट a, तो प्रेशर एट b इज प्रेशर एट a प्लस समथिंग, मतलब प्रेशर एट b इज ग्रेटर देन प्रेशर एट a। तो A और D मल्टीपल करेक्ट है, ओके तो बहुत सिंपल था। एनीवेज अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे तो भी आपको वही इक्वेशन मिलेगा। अननेसेसरी डू नॉट यूज बर्नौलीज इक्वेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगला क्वेश्चन, ओके इफ यू रिमेंबर, अगर याद होगा तो वेंचुरी मीटर जब हमने देखा था तब मैंने बताया था एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इन्वर्टेड वेंचुरी मीटर है। वेंचुरी मीटर में यू हैव अ ट्यूब विच इज वाइडर एट द टू एंड्स एंड देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन इन द मिडल। एक वाइड एंड पे और एक कॉन्स्ट्रिक्शन पे हम लोग, जो हमारे पास मैनोमीटर होता है उसके दो आर्म्स कनेक्ट करते हैं। मैनोमीटर में, चलो ड्रॉ कर देता हूँ मैं, बट यू हैव टू रिमेंबर सच थिंग्स। हमारे पास वेंचुरी मीटर में वी हैड समथिंग लाइक दिस, देन जो वाइडर एंड है वहाँ पे और जो नैरोअर एंड है वहाँ पे मैनोमीटर का
एक एक आर्म कनेक्ट कर दिया था हमने। और अगर आपको याद होगा, इन दिस केस इफ यू रिमेंबर, इसमें हमने मर्क्यूरी फिल किया था। तो मर्क्यूरी फिल किया था तो यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल नीचे था, यहाँ पे ऊपर था। बेसिकली क्योंकि जो भी लिक्विड फ्लो होगा, जैसे वाटर फ्लो होगा, तो वाटर का कॉलम ज़्यादा है एट द वाइडर एंड और कम है एट द कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये जो हाइट का डिफरेंस आया था ना, दैट वाज h। देन यू टेक दिस एज लाइक पॉइंट A, पॉइंट B, and you apply Bernoulli's principle. What is Bernoulli's principle if you remember? PA plus half rho VA square equal to PB plus half rho VB square. ग्रेविटेशनल हेड मैंने लिखा नहीं रो जी एच, क्योंकि A और B का हाइट सेम है, बिकॉज दे आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब हाइट इज सेम। तो इन दैट केस अगर आपको याद होगा तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू हाफ रो बी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, और ये पी ए माइनस पी बी होता है एच रो जी, लेकिन कौन सा रो? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इक्वल टू हाफ रो बी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। इस केस में राइट हैंड साइड पे जो डेंसिटी है वो है उस लिक्विड का डेंसिटी जो फ्लो हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेंसिटी है वो है जो लिक्विड मैनोमीटर में है उसका। बट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये उल्टा होगा, दिस विल बी इन्वर्टेड, और ऊपर लिक्विड कोई और बताया ही नहीं। लुक, कुछ बोला ऐसा कि ऊपर कौन सा लिक्विड है? नहीं। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, so this is a horizontal tube. The velocity of liquid in the two sections which have areas cross section A1 and A2 are V1 and V2. The difference in the level of the liquid, the difference in the level of liquid in the two vertical tubes. तो जो दो vertical tube है इसमें जो difference है, difference in the level of liquid is h. तो चार स्टेटमेंट में से क्या करेक्ट है ऐसा आपको पूछा है। ये भी मल्टीपल करेक्ट टाइप में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें, इसमें और ये जो क्वेश्चन है इसमें बेसिक डिफरेंस है डेंसिटीज का। तो यहाँ पे भी आप बर्नौलीज प्रिंसिपल ही अप्लाई करोगे। ए पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर इज P1, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो जी H1 लिख तो रहा हूँ लेकिन कैंसिल होगा वो, रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, लेकिन H1 और H2 दे आर सेम, दैट इज वाई ये टर्म और ये टर्म हो गया कैंसर। P2 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बट P1 माइनस P2 क्या होता है? H रो जी, H रो जी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्योंकि इस केस में स्पेसिफाई नहीं किया कि इस दोनों लिक्विड के ऊपर क्या है, कौन सा लिक्विड है, तो हमको दिख रहा है कि जो लिक्विड यहाँ पे है वही लिक्विड यहाँ पे है, तो इसका मतलब डेंसिटीज आर सेम, तो ये हो जाएगा कैंसल। गुड, तो कैंसल हो गया। तो व्हाट यू हैव इज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो 2HG, राइट। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2HG, ये तो करेक्ट है, दिस इज राइट। ओके, देन सही है ना? तो दिस इज करेक्ट। और the volume of liquid flowing through the tube in unit time is A1 V1. V2 minus V1 equal to under root of 2GH. The energy per unit mass of the liquid is the same in both the sections of the tube. एक तो करेक्ट आ गया, सी तो करेक्ट है, बाकी बी भी करेक्ट है। बी कैसे करेक्ट है?
ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ऑप्शन ए, बी और डी। कौन सा करेक्ट है? सी तो आ ही गया, सी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए करेक्ट है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब इन यूनिट टाइम इज A1V1। यूनिट टाइम में A1V1। One said A is also correct. What about others? वॉल्यूम फ्लक्स याद है क्या आपको? वॉल्यूम फ्लक्स, व्हाट वाज वॉल्यूम फ्लक्स? हमने जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा था उसमें ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया। डायमेंशनली मैंने बताया था ए इंटू वी इज नथिंग बट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम भी तो पूछा ना, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब इन यूनिट टाइम इज बराबर है ना, दिस इज राइट। इफ यू डू नॉट रिमेंबर बता देता हूँ मैं, ए इज मीटर स्क्वायर, वी इज मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। तो व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, तो A1V1 करेक्ट है। ये बी नहीं करेक्ट हो सकता ना, अगर सी करेक्ट हो गया तो बी कैसे करेक्ट आएगा? तो बी इज नॉट करेक्ट, ए सी राइट। व्हाट अबाउट डी? द एनर्जी पर यूनिट मास of the liquid is same in both the sections. Of course, Bernoulli's equation is based on constant of energy. तो एनर्जी सेम है, जितना एनर्जी बड़े सेक्शन में उतना ही छोटे सेक्शन में। तो ए और सी और डी। और इस पे और एक क्वेश्चन आया था, अभी आएगा आगे, इसी सेट में है वो। बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जर्वेशंस? वर्क डन, जो तुमने वर्क डन किया था तो पुश द लिक्विड अप, partially it is used to change potential energy and partially it is used to change kinetic energy। तो ए और सी और डी तीनों करेक्ट है। गुड डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Again a theoretical question. Water containing air bubbles flows without turbulence through a horizontal pipe which has a region of narrow cross section. In this region, the water containing air bubbles flows without turbulence through a horizontal pipe which has a region of narrow cross section. In this region, the bubbles move with greater speed and are smaller than in the rest of the pipe, move with greater speed and are larger in size than the rest of the pipe, move with lesser speed and are smaller than in the rest of the pipe, move with lesser speed and are of the same size as that of rest of the pipe। अब बताओ कौन सा आंसर आएगा इसमें? पहली बात तो एक चीज समझ लो, बबल का स्पीड और वाटर का स्पीड सेम है, क्योंकि जिस स्पीड से वाटर फ्लो होगा उसी स्पीड से बबल भी मूव होगा। और हमको पता है कि जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो वहाँ पे स्पीड क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब सी एंड डी तो नहीं आ सकते अब, सी एंड डी आर आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला इन दिस रीजन। कौन से रीजन में? नैरो क्रॉस सेक्शन में एरिया कम
तो स्पीड ज़्यादा, तो ए और बी में से एक है। सिर्फ मूव विद ग्रेटर स्पीड यस, बट बबल्स का साइज स्मॉलर होगा कि लार्जर होगा? स्मॉलर होगा कि लार्जर होगा? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन? डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। नैरो सेक्शन में प्रेशर कम होता है कि ज़्यादा होता है? कम होता है, तो रेडियस ज़्यादा होगा कि कम होगा? प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी और आर रेडियस मतलब साइज ऑफ द बबल, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। नैरो सेक्शन में कॉलम छोटा होता है तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर अगर कम हो गया तो रेडियस, तो अब बताओ ऑप्शन बी नन। नैरो सेक्शन अभी तो बताया, दिस इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, हियर यू हैव मोर प्रेशर बिकॉज इज मोर कॉलम। प्रेशर नैरो सेक्शन में प्रेशर कम होगा क्योंकि कॉलम लेंथ छोटा है। इज दिस क्लियर या वापस रिपीट कर दूं? ओके, सबसे पहले जो वाटर का स्पीड होगा वही बबल का स्पीड होगा, इज दैट क्लियर? जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होता है, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया एंड वी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो नैरो रीजन में स्पीड ज़्यादा होगा, इसके लिए सी और डी नहीं आएगा। तो मूव विद ग्रेटर स्पीड तो पक्का है, लेकिन जो बबल्स है, बबल्स उसका जो साइज है वो बाकी रीजन से स्मॉलर है कि लार्जर है? तो नैरो, जहाँ पे पाइप नैरो है वहाँ पे प्रेशर कम है। क्यों प्रेशर कम है? क्योंकि कॉलम कम बन रहा है ना, यहाँ पे कॉलम ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतना कॉलम बना तो प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कॉलम कम है तो प्रेशर भी कम है। अगर प्रेशर कम है तो साइज बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन क्या बताता है हमको? डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। प्रेशर कम तो साइज ज़्यादा, तो आर लार्जर इन साइज देन द रेस्ट ऑफ द पाइप। डन। मैंने इसके लिए आपको एक होमवर्क दिया था, 3 होमवर्क दिए थे और मैंने उसका 24 आवर से डेडलाइन एक्सटेंड किया क्योंकि यू हैव नॉट डन दैट। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है पता होना चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं, ध्यान नहीं लगने वाला। इससे पहले स्टेट बोर्ड पे भी मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में 3 रीडिंग असाइनमेंट दिए थे। 2 हमने किए थे, एक था स्पीड ऑफ इफ्लक्स, दूसरा था 5 एप्लीकेशंस थे ना, 5 बर्नौलीज प्रिंसिपल के 5 एप्लीकेशंस थे। आपको थ्योरी नोट्स लिए, उसमें 5 एप्लीकेशंस है। एक था स्पीड ऑफ इफ्लक्स, दूसरा था वेंचुरीमीटर, तीसरा था लिफ्टिंग अप ऑफ समथिंग समथिंग, चौथा था एटमाइजर, बराबर? तो और एक था 5वां रिलेटेड टू रूफ, अभी नहीं किया ना वो, आज उस पर क्वेश्चन आएंगे, वो भी फिर देखते हैं। तो चलो ठीक है, वर्किंग ऑफ एन एटमाइजर डिपेंड्स ऑन, ओके। हाँ, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन P by rho g plus h plus half v square by 2g equal to constant. The terms a, b and c are generally called respectively as. तो पहले तो क्वेश्चन थोड़ा गलत है। बर्नौलीज इक्वेशन याद होगा आपको, P plus half rho v square plus rho g h। अगर मैं रो और g से डिवाइड कर दूँ तो P by, of course it is a constant, तो अगर मैं रो जी से डिवाइड कर देता हूँ तो प्रेशर बाय रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बाय रो जी, रो और रो हो गया कैंसल, प्लस रो जी एच बाय रो जी, तो रो जी हो गया कैंसल। कांस्टेंट अपॉन अ कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, तो मैं उसको सिर्फ कांस्टेंट लिखूंगा। तो P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस एच, सिर्फ इन्होंने लिखते वक्त ना h को
पहले लिखा है और v²/2g को बाद में लिखा है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो टर्म है इसको बोला है a, ऐसा बोलना चाहिए था, बोला नहीं, मिसप्रिंट है। ये है b और ये है c। डू यू रिमेंबर, मैंने बताया था आपको ये तीन टर्म के तीन नाम है अलग अलग। जिसमें प्रेशर आता है उसको प्रेशर हेड बोलते हो, जिसमें v आता है क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी हेड बोलते हैं, और जिसमें h आता है उसको पोटेंशियल एनर्जी हेड या फिर ग्रेविटेशन हेड बोलते हैं। तो a क्या है, a प्रेशर हेड, b क्या है ग्रेविटेशनल हेड, और c क्या है, ऑप्शन सी। तो दिस इज प्रेशर हेड, दिस इज ग्रेविटेशनल हेड, and this is velocity head. ओके, तो कुछ नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन था। अगेन बता दो अभी, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So we'll first go through NEET PYQs and then we'll go to JEE mains पहले step by step. So NEET. Okay. 2015. Good question again. The heart of man pumps 5 liters of हार्ट ऑफ मैन और हार्ट ऑफ एनी एनिमल, फॉर दैट रीजन क्या पंप करता है वो, हाँ ब्लड करता है। ओके गुड, पानी नहीं करता ना, तो 5 liters ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट अ प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मर्क्यूरी। इफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी बी 13.6 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड g वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द पावर ऑफ हार्ट इन वैट इज। तो योर हार्ट इज जस्ट लाइक अ मोटर, जिससे तुम पानी भरते हो वैसा मोटर। वाटर पंप क्या करता है, वाटर को पंप करता है फ्रॉम बेसिकली लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो सिमिलरली हार्ट इज ऑल्सो द सेम थिंग विच पंप्स ब्लड। और आपको पूछा है जैसे आपके घर में भी पानी का मोटर होगा, तो किसी के घर में होगा, ऑफकोर्स हॉर्स पावर में मेजर करते हैं हम लोग, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, डिपेंड करता है कहाँ से आपको कहाँ तक पंप करना है। इफ़ यू वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम वेरी लो हाइट टू वेरी हाई हाइट, तो यू नीड मोर हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इज नॉन ऐसा यूनिट, लेकिन वैट इज ऐसा यूनिट। आपको पूछा है व्हाट इज द पावर ऑफ हार्ट इन वैट। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपने जो भी थ्योरी सीखा वो एप्लीकेबल है, लेकिन फॉर्मूला आपने डायरेक्टली डिराइव नहीं किया है, तो यू हैव टू डिराइव इट नाउ। तो हर बार थ्योरी में जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो डायरेक्टली आएंगे ऐसा नहीं होता। तो पहले तो ये बताओ, ये 5 liters पर मिनट मतलब क्या? द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 liters ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट। तो 5 liters पर मिनट मतलब कौन सा फिजिकल वॉल्यूम फ्लक्स। वेरी गुड, इट इज वॉल्यूम फ्लक्स। तो बेसिकली आपको dV/dt दिया हुआ है, या फिर मैं इसको V/T लिख दूंगा, और ये है 5 liters पर मिनट। लीटर इज नॉट SI, मिनट इज ऑल्सो नॉट SI। लीटर टू मीटर क्यूब कैसे कन्वर्ट करते हो? लीटर टू मीटर क्यूब 10⁻³ और सेंटीमीटर क्यूब 10⁻+3। तो 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब, और मिनट को सेकंड में लाने के लिए 60 आ जाएगा, तो 1 का एंड 12। तो यू हैव 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक फिजिकल क्वांटिटी आपको ये दिया हुआ है, वॉल्यूम पर मिनट टाइम या फिर वॉल्यूम फ्लक्स, और एक डेंसिटी दिया है और जी दिया है और प्रेशर दिया हुआ है। प्रेशर इज 150 mm ऑफ मर्क्यूरी। मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने, अगर याद होगा तो, विच वॉज द इंस्ट्रूमेंट दैट यू यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर?
mercury barometer. What is the height of mercury in a barometer for 1 atmospheric pressure? 760 mm, मतलब 76 सेंटीमीटर. दैट टाइम आई टोल्ड यू कि बहुत बार क्या करते हैं ना, रो और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते, सिर्फ आपको बता देते हैं कि हाइट कितना है. तो सेम दे आर डूइंग हियर. दे आर टेलिंग यू दैट द प्रेशर इज 150 mm ऑफ मर्क्यूरी. तो आपको हाइट बताया है कॉलम का, तो अगर मुझे प्रेशर का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एच रो जी. उसमें से एच कितना है 150 mm. 150 mm मतलब 10⁻³ डेंसिटी कितना है 13.6 इंटू 10⁻+3 और जी की वैल्यू कितनी है 10. 10⁻+3 -3 कैंसिल हो गया गया. ओके, अब बचा क्या 15 इंटू 13.6 इंटू 10 स्क्वायर. ये 150 का 10 और ये 10. अब इसको ऐसे रखो, दिस इज ऑफ कोर्स इन पास्कल, ये पास्कल में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हाइट मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जी और रो तो वैसे भी एसआई में थे तो ये पास्कल में आ गया. तो आपके पास दो पैरामीटर है, एक है वॉल्यूम फ्लक्स और एक है प्रेशर, और आपको पूछा गया है पावर. अब पावर का फॉर्मूला हम लोगों को बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर. ठीक है, बहुत जगह पे आपको डायरेक्ट बता देंगे कि पावर का फॉर्मूला रट लो, बिल्कुल रटना नहीं. तो do not do this kind of thing. What is power? General definition: work upon time. Excellent. Work by time. What is work by definition? Force into displacement. ठीक है, upon time. सही है, करेक्ट. ओके, ठीक. अभी मैं काम करता हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट को x बोल देता हूँ, x अपॉन टाइम. अब देखो हमारे पास जो पैरामीटर है ना, उसमें डिनोमिनेटर में टाइम है, इसके लिए x अपॉन टी को वेलोसिटी मत लिखना, नहीं तो क्या होता है x अपॉन टी वेलोसिटी लिख देते हैं, वैसा करना नहीं है यहाँ पे. व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया. तो व्हाट इज फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया. डायमेंशनली बताओ a इंटू एक्स क्या होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होगा, वॉल्यूम. वेरी गुड, तो ये बन गया वॉल्यूम. तो सिंस ax इज वॉल्यूम, और वॉल्यूम फ्लक्स तुमको दिया है, तुमको प्रेशर भी दिया है, बन गया फॉर्मूला. तो पावर इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम फ्लक्स. अब प्रेशर हमारे पास था वैल्यू 15 इंटू 13.6 इंटू 10, और वॉल्यूम फ्लक्स कितना दिया हुआ है 10⁻³ बाई 12. सही है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर्स. ये 10 स्क्वायर था. ओके, यू आर नॉट सपोज टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन. यहाँ ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 13.6 बाई 12 स्लाइटली ग्रेटर देन 1 इंटू 15 स्लाइटली ग्रेटर देन 15, 16-17 के आसपास, 16-17 के आसपास. ओके, करेक्ट. 10⁻² और 10⁻³ 10⁻⁻1, 16 या 17 जो भी होगा वो इंटू 10⁻⁻1, 1.7 के आसपास, 1.7 के आसपास हो गया, 1.7 वैट. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The value of coefficient of volume expansion of glycerin is 5 into 10⁻⁻4 per Kelvin. The fractional change in the density of glycerin for a rise of 40 degrees Celsius in its temperature is. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, और 3 टाइप के थर्मल एक्सपेंशन थे. अगर हमारे पास एक रॉड है, रॉड एज अ लीनियर ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन, तो जब आप उसको हीट करोगे उसका लेंथ बढ़ेगा. Increase in length is proportional to two things: initial length and change in temperature. तो डेल्टा L इक्वल टू, जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो, यू राइट डाउन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो यहाँ पे तुम लिखते ही हो अल्फा. ये अल्फा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये अल्फा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. इसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. Similarly, if you have, just a minute, if you have object like a plate, metal plate, rod के लिए लेंथ होता है, प्लेट के लिए it has area, 2 dimensional.
उस केस में व्हेन यू हीट दैट प्लेट, चेंज इन एरिया is proportional to initial area into change in temperature. तो डेल्टा ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बीटा, जिसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ए जीरो डेल्टा टी. सिमिलरली व्हेन यू हैव 3D ऑब्जेक्ट लाइक अ क्यूब, आप जब उसको हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी. तो डेल्टा वी इक्वल टू सम कांस्टेंट गामा, जिसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और वही यहाँ पे दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वी नॉट डेल्टा टी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुमको पता होना चाहिए था, तो नहीं पता था तो पता लग गया. देन यू कैन राइट द सेम फॉर्मूला एज डेल्टा वी इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू गामा इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा टी. Correct. Volume or density, you can write the same formula for density also. Same formula for density also. Volume और density का relation क्या है? Inverse. तो सिर्फ density लिखते वक्त उल्टा, initial density minus final density equal to, और यहाँ पे initially रहता है हमेशा. अब ये fractional change मतलब क्या? Fractional change, this is change in density upon initial density. Change in density upon initial density is fractional change in density. जैसे डेल्टा वी बाई वी नॉट, चलो बता ही देता हूँ अभी. सिंस आई एम राइटिंग डाउन एवरीथिंग, आई विल टेल यू लिटिल बिट एक्स्ट्रा, क्योंकि आगे काम में आएगा ही ये. हमको वैसे भी थर्मल स्ट्रेन में भी काम में आने वाला है ये. तो डेल्टा एल बाय एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. डेल्टा ए बाय ए नॉट इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया. डेल्टा वी बाई वी वी नॉट गामा डेल्टा टी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. और जैसा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला है वैसा ही डेंसिटी का बनता है. अब बोला गया तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इवन दो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सेम क्यों बनता है फिर 11th का पहला चैप्टर एरर एनालिसिस. डू यू रिमेंबर डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, याद है क्या? जैसे जैसे z इक्वल टू a बाई बी, व्हाट इज डेल्टा z बाई z? डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. प्लस लिखा ना, माइनस नहीं किया ना आपने? क्यों नहीं किया? रूल है वो. और अगर a कांस्टेंट हो, a अगर कांस्टेंट हो तो क्या लिखोगे? डेल्टा b बाई b. तो सिमिलरली व्हाट विल बी फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी? डेल्टा m बाई n प्लस डेल्टा v बाई v. सही है. जब तुम एक सब्सटेंस को हीट करते हो उसका मास थोड़ी चेंज होता है, मास चेंज रहता है ना, मतलब मास क्या है? कांस्टेंट. तो तुमको समझ में आया, जितना फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम का है उतना ही फ्रैक्शनल चेंज डेंसिटी का भी है. और ये तो हमने अभी देखा ना, क्या था? गामा डेल्टा टी. ओके, व्हाट इज गामा वैल्यू? 5 into 10 raised to minus 4. What is change in temperature? 40 डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, चेंज इज ऑलवेज द सेम. बराबर. तो चेंज इन टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. व्हाट इज 40 into 5? 200. 200 into 10 raised to minus 4 कितना होता है? 0.2. 0.2 इधर 0.02. 10 raised to minus 4 है. 0.02. 0.02 ऑप्शन ए. गुड. क्वेश्चन नंबर 3. इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए, तो अभी सबका ध्यान यहाँ पे. ऑल ऑफ यू नीड टू पे अटेंशन हियर. क्वेश्चन पहले तो पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्या बोला है वो समझना है, और डायग्राम भी दिया है साथ में. और यूट्यूब विद बोथ एंड्स ओपन टू एटमॉस्फेयर, दोनों एंड्स ओपन टू एटमॉस्फेयर है. इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, मतलब पहले सिर्फ वाटर था. जब तक सिर्फ वाटर था तब तक लेवल सेम रहेगा वाटर का दोनों आर्म्स में. तो
जब तक हमारे पास दोनों आर्म्स में सिर्फ वाटर है, तो दोनों आर्म्स में लेवल विल बी द सेम। ओके, तो इन बोथ द आर्म्स यू विल हैव सेम लेवल। तो मान लेते हैं कि ये है ओरिजिनल लेवल ऑफ वाटर मान लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे इन्होंने इनिशियल वाटर लेवल बोला है, so दिस इज इनिशियल लेवल। और सेम क्यों आएगा? क्योंकि ऑफ कोर्स बोथ एंड्स आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो दोनों के ऊपर एग्जैक्टली सेम प्रेशर है, एटमॉस्फेयर। अभी क्या बोला है? ऑयल विच इज इमिसिबल विद वाटर, ऑयल जो पानी के साथ मिक्स नहीं होता, is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm. ऑयल तुम तब तक भरते गए जब तक it stands at a distance of 10 mm above the water level। लेकिन आगे क्या बोला है? on the other side, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर मैं लेफ्ट साइड में इफ आई एम फिलिंग ऑयल, तो मान लो मैं लेफ्ट साइड में ऑयल भर रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड में ऑयल तब तक भरता रहूँगा, दिस इज वाटर लेवल, क्योंकि इसके ऊपर ऑयल आ गया तो लेफ्ट साइड में प्रेशर बढ़ गया तो लेफ्ट साइड में वाटर विल बी पुश डाउन और राइट साइड में अप। अब इन्होंने बोला ऐसा है कि तुम ऑयल को तब तक भरते रहे, कब तक भरते रहे? जब तक वो 10 mm ऊपर नहीं है। किससे ऊपर? वाटर के लेवल से। लेकिन कौन सी साइड पे? अदर साइड पे। मतलब इसका मतलब ये होता है, क्या होता है इसका मतलब? कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये कितना है? 10 mm है। दूसरे साइड में वाटर का लेवल उससे 10 mm ऊपर ऑयल का लेवल है ना, बराबर? समझ में आया स्टेटमेंट? पहले तो ये स्टेटमेंट समझेगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑयल तब तक बढ़ते गए until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side। हो गया। Meanwhile, मतलब जब ऑयल को तुम फिल कर रहे थे उस टाइम में क्या हुआ? The water rises by 65 mm from its original level। Rises मतलब ये राइज कितना है? 65 mm। करेक्ट? पक्का? श्योर। और क्योंकि दोनों क्रॉस सेक्शन सेम है, तो अगर 65 mm वहाँ पे राइज है तो यहाँ पे 65 mm फॉल भी हो इस साइड में। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 65 mm। ओके, वैसे तो तुमको क्वेश्चन में ही सब कुछ बता दिया था, सब कुछ दिया है क्वेश्चन में ही दे दिया। देखो, इनिशियल लेवल उससे 65 mm ऊपर एक साइड में, उससे 65 mm नीचे दूसरी साइड में, और ये 10 mm। तो क्वेश्चन में सब कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी थी। आपको पूछा डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये क्वेश्चन 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप आंसर है इसका, अगर याद होगा तो। नहीं, मैं पहले पूरा सोल्यूशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाउ टू यूज ट्रिक हियर। इन वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू, जो भी न्यू लेवल होता है ना, न्यू लेवल ऑफ द लिक्विड, ये यहाँ पे एक पॉइंट लेना जो इन्होंने बी बोला है, यहाँ पे पॉइंट लेना जिन्होंने सी बोला है। प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी आर सेम, तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। लेकिन बी के ऊपर ये जो लिक्विड है इसका कॉलम है, लिक्विड कौन है? ऑयल है। तो बी के ऊपर प्रेशर होगा एच रो जी, लेकिन किसका एच? ऑयल का एच। किसका डेंसिटी? ऑयल का डेंसिटी। और ऑयल के भी ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर है, तो P0। और सी पॉइंट के ऊपर वाटर है, उसके ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर। तो क्या लिखेंगे? एच वाटर रो वाटर जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैंसल, ठीक। जी और जी भी कैंसल, तो क्या हो गया? एच ऑयल रो ऑयल इक्वल टू एच वाटर रो वाटर। यही तो ट्रिक था। प्रोडक्ट ऑफ एच इंटू रो इज कॉन्स्टेंट, H1 ρ1 equal to H2 ρ2। तो डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर सकते थे। व्हाट इज हाइट ऑफ ऑयल कॉलम? हाइट ऑफ ऑयल कॉलम अबव बी 65 प्लस 65 प्लस 10, 65 एंड 10 मतलब 140 mm है। मुझे पता है, मैं कन्वर्ट नहीं करने वाला क्योंकि राइट हैंड साइड भी mm आएगा। डेंसिटी ऑफ ऑयल
इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर अबव विच पॉइंट, सी पॉइंट, 65 और 65 कितना 130, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000। हो गया, गुड, कैंसिल। डेंसिटी ऑफ ऑयल is 13/14, 13/14 is slightly less than 1, तो 0.9 ऐसा मान लेते हैं, 0.928, क्योंकि मुझे 928 दिख गया था आंसर में, इसलिए मैंने 0.928 लिख दिया into 1000। हाउ मच इज दैट, 928, ऑप्शन डी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, नॉन मिक्सिंग मतलब मिक्स नहीं होते, ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो। इंपॉर्टेंट ये है कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। पहले लिक्विड का डेंसिटी रो है, दूसरे का एन रो है, एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब दूसरे लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है, तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो वो नीचे होता है और जिसका कम हो वो ऊपर होता है। तो वाइल बिफोर यू सॉल्व द क्वेश्चन, सबसे पहले आपको यू हैव टू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। ये डेंसिटी, ये एक लो डेंसिटी का लिक्विड मान लेता हूँ मैं, लो डेंसिटी, एंड देन आई टेक अ लिक्विड ऑफ हाई डेंसिटी। तो डेफिनेटली जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे होगा, ऑफ कोर्स, ठीक, गुड। आगे क्या बोला है, आर पुट इन अ कंटेनर, तो दो लिक्विड तुमने एक कंटेनर में डाल दिए, देन द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, पहले लिक्विड का हाइट h था, दूसरे का भी h है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l एंड डेंसिटी d इज पुट इन दिस कंटेनर, तो इस कंटेनर में आपने एक सॉलिड सिलेंडर डाल दिया। आप इमेजिन कर लेना कि इट इज अ सिलेंडर, ऐसा आपने डाल दिया। आगे क्या बोला है, द सिलेंडर फ्लोट्स, फ्लोट मतलब नीचे नहीं गया वो, इट इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब आधा उसका एक पार्ट नीचे होगा, नीचे वाले लिक्विड में, एक ऊपर वाले लिक्विड में। तो सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, तो मैंने एक्सिस को पहले से ही वर्टिकल लिखा है, ये ऐसा वर्टिकल है, क्योंकि सिलेंडर ऐसा भी फ्लोट हो सकता था, कैसा, ऐसा। इस केस में एक्सिस वर्टिकल है क्या, नहीं, क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन में क्या बोला है पहले वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, it floats with its axis vertical, मतलब this is what they are telling you, ऐसा है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है with its axis vertical and length PL in the denser liquid where P is less than 1, और 1 से कम आना ही चाहिए, क्योंकि total length of the cylinder, what is the total length of the cylinder, L। अगर ऐसा बोला है कि टोटल लेंथ L है, उसमें से डेंसर लिक्विड में PL है, तो P की वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए। अगर P की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो PL बिकम ग्रेटर देन L। अब जब पूरे सिलेंडर का लेंथ L है, तो एक लिक्विड में L से बड़ा नंबर नहीं आ सकता ना। अगर 10 सेंटीमीटर है ये टोटल, तो एक लिक्विड में जितना भी लेंथ है वो 10 से कम होगा। ओके गुड, एक काम करो, सबसे पहले ना लिक्विड्स को नंबर दे दो, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड रो है ना, एन रो है, क्योंकि डेंसर है वो, तो वो एन रो है, और जो दूसरा है वो कौन है, रो है। गुड, देन इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, और L1 क्या बोला है, PL, और आपको समझ में आ गया L1 प्लस L2 इज इक्वल टोटल लेंथ, तो L2 L माइनस L1, L माइनस PL मतलब L कॉमन 1 माइनस P, करेक्ट हो गया। अब इन्होंने बोला है कि सिलेंडर फ्लोटिंग, और सिलेंडर फ्लोट कब करता है, जब वेट ऑफ द सिलेंडर इज बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट या फिर फोर्स ऑफ ब्यूयेंसी। व्हाट इज वेट, m into g, किसका मास, सिलेंडर का मास, तो मास ऑफ द सिलेंडर into g। अपथ्रस्ट, यहाँ पे सिलेंडर का एक पार्ट एक लिक्विड में है, दूसरा पार्ट दूसरे लिक्विड में है, तो अपथ्रस्ट होगा
ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड प्लस अपथ्रस्ट होगा ड्यू टू सेकेंड लिक्विड. हाउ डू यू फाइंड आउट अपथ्रस्ट? Weight of liquid displaced. Weight of liquid displaced 1 plus weight of liquid displaced 2. क्योंकि एक लिक्विड में there is a part of the cylinder, दूसरे में भी there is a part of the cylinder. तो जितना वॉल्यूम पहले लिक्विड में है उतना पहले लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जितना दूसरे में है उतना दूसरे का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा. गुड. तो मास ऑफ सिलेंडर इनटू जी इक्वल टू व्हाट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 1 into g plus mass of liquid displaced 2 into g. g cancel कर दो. Mass of cylinder equal to mass of liquid displaced 1 plus mass of liquid displaced 2. आपको क्या पूछा है? डेंसिटी d पूछा है. किसका डेंसिटी d? सिलेंडर का. What is mass? Volume into density. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर into density of cylinder equal to volume of liquid displaced 1 into density rho 1 plus volume of liquid displaced 2 into rho 2. Correct? Clear यहाँ तक? Good. Then volume of cylinder is area of cross section into length. ये जो area है ना सिलेंडर का, इसको मैं A मान लेता हूँ. Into length. Density of cylinder को D बोला है. What is volume of liquid displaced 1? जितना सिलेंडर का वॉल्यूम पहले लिक्विड में है उतना ही डिस्प्लेस होगा. तो कितना वॉल्यूम है? A इंटू L1. तो A इंटू L1 इंटू रो 1 प्लस A इंटू L2 इंटू रो 2. हो गया? क्या कैंसिल हो गया? एरिया. तो क्या आ गया? LD इक्वल टू L1 रो 1 प्लस L2 रो 2. ये यहाँ से ट्रिक बन गया, मतलब ये सब करना ही नहीं था तुमको. तो यहाँ पे ध्यान दो, those who are still writing, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये सारे स्टेप्स यू कैन स्किप इफ यू अंडरस्टैंड लेंथ इनटू डेंसिटी इज कांस्टेंट. तो LD इज लेंथ ऑफ सिलेंडर, D इज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इक्वल टू L1 रो 1 प्लस L2 रो 2. अगर तीसरा लिक्विड दे दिया होता तो L3 रो 3, तो डायरेक्टली आ जाएगा. उस केस में आपको D फाइंड करना है. ओके. तो LD, व्हाट इज L1? L1 की वैल्यू कितनी बोली थी? PL. तो PL, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड? N रो. PL N रो. व्हाट इज L2? व्हाट इज L2? यू जस्ट फाउंड आउट. L into 1 minus P into रो. ओके. तो L कैंसिल हो गया. तो क्या बचा? D इक्वल टू P N रो प्लस L तो गया ना, 1 माइनस P रो. हो गया. तो D इक्वल टू रो कॉमन निकाल लो, NP प्लस 1 माइनस P. तो रो 1 साइड में कर लो, NP माइनस P में से P कॉमन आ गया. हो गया. कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन? कहाँ पे? हाँ, रो 1 प्लस N माइनस 1 P. मेरे यहाँ पे D है, मे बी ऑप्शन नंबर D. डन. Next question. Quick. अब ये सेम क्वेश्चन they can ask you in the form of a number. रो की वैल्यू दे देंगे, P बता देंगे, N बता देंगे, पुट वैल्यूज एंड सॉल्व. अगला क्वेश्चन number 5. The cylindrical tube of a spray pump has radius R, one end of which has n fine holes, each of radius small r. If the speed of liquid in the tube is v, the speed of ejection of the liquid through the holes is. अगर आपने गार्डनिंग का पाइप देखा होगा,
गार्डनिंग में पाइप यूज करते हैं ना वाटर देने के लिए प्लांट्स को, तो उस केस में क्या होता है, यू हैव समथिंग लाइक दिस, एक पाइप होता है एंड देन ये जो पाइप है इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं और हर एक होल से पानी बाहर आ रहा है और n नंबर ऑफ होल्स है। हर एक होल का रेडियस स्मॉल r मान लेता हूँ और जो पाइप है इसका रेडियस कैपिटल R मान लेता हूँ। यहाँ पे स्पीड v है, v1 इक्वल टू v है। यहाँ से जो पानी बाहर आ रहा है उसका स्पीड v2 फाइंड करने के लिए बोला है। द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप, ये स्प्रे पंप का सिलेंड्रिकल ट्यूब है, हैज रेडियस r, वन एंड ऑफ विच, इसका एक एंड उसमें क्या है n फाइन होल, देयर आर n नंबर ऑफ स्मॉल होल्स, each of radius small r, each of radius small r. If the speed of liquid in the tube is v, मतलब v1 equal to v, बराबर v1 equal to क्या दिया हुआ है v, ओके है ना, ऐसे बोला ना v1 equal to v. The speed of ejection of the liquid through the holes is, मतलब v2 फाइंड करना है, सपोज टू फाइंड v2, क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 equal to a2 v2, करेक्ट। सिर्फ यहाँ पे n आएगा, क्यों n आएगा, क्योंकि n नंबर ऑफ होल्स से हर एक होल में से पानी बाहर निकल रहा है। आपको v2 पूछा है तो v2 क्या मिल जाएगा आपको, व्हाट इज v2 फ्रॉम हियर, a1 v1 अपॉन n a2, a1 is pi r square, a1 area of cross section at point 1 is pi r square upon n, what is a2, पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि छोटे होल्स का रेडियस r है तो पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू v1, v1 कितना है, v1 इज v। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, पाई पाई हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर, v2 इक्वल टू v r स्क्वायर अपॉन n स्मॉल r स्क्वायर, v कैपिटल R स्क्वायर अपॉन n स्मॉल r स्क्वायर, कहाँ पे है, ऑप्शन ए, डन।